So today we are going to do a non-parametric sign test. So today we are going to solve these three questions. So please take the screenshot of this question. So hello friends. Today we are going to discuss about a non-parametric test. So there are a lot of different non-parametric tests. The examples are sign test, median test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, and Spearman's rank correlation test. These are the examples of non-parametric test. But today we are going to learn only about sign test. So in the beginning of the video, I had already given you the questions that we are going to solve today. So from that questions, we are going to solve question number first. So since we are going to do a sign test, so first I would like to tell you that there are two different forms of sign test. One is a one sample test and another one is a two sample test. So we are going to solve both the types of sums, wherein the first type of sum will be only for the one sample, and the second type of sum will be regarding the two samples. So first we are going to do the type of sum which is having only one sample. We are going to solve question number 1. So example number 1 is, I will let you know the process of doing the sum right in the examples only. So examples देखते देखते ही sum कैसे करना है ये हम समझ लेंगे. So in example number 1 it is given that suppose that the following sample of 10 independent observation has been drawn from some distribution. So we have given in the question the 10 independent observation that has been drawn from some distribution. So the 10 observation that are drawn, I am writing it down. Observations. We are doing example number 1 from that questions. So the observations are 7.0, 4.4, 4.9, 1.3, 2.6, 6.2, 3.5, 3.4, 2.1, and 2.7. So these are the 10 observations that I have written here. So the value of n is equal to 10 because there are 10 observations. The value of n is 10, equal to 10. Now what is told in the question that we are required to do, test the hypothesis that the population median is greater than 2. So यहाँ पे ऐसा बोला है कि test the hypothesis that the population median is greater than 2. Population median is greater than 2. क्वेश्चन में ऐसा बोला है. हम नल हाइपोथेसिस सपोज करते हैं. नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं और H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे पॉपुलेशन मीडियन इज ग्रेटर देन 2. हम नहीं लिख सकते. नल हाइपोथेसिस में हमेशा हमें इक्वल टू 2 लिखना पड़ता है. Median can never be greater than 2, can never be smaller than 2 in null hypothesis. In null hypothesis, we will always have to assume that median is equal to 2. So null hypothesis is median is equal to 2. This is your null hypothesis. Against the alternative hypothesis. Alternative hypothesis will be denoted by H1, and that will tell you that median is greater than 2. This is what is given in the question. This is what we are supposed to test in this sum, that median is greater than 2. So this is your alternative hypothesis. Why it is
why is it an alternative hypothesis? Because in null hypothesis we cannot put sign of greater or smaller because null hypothesis always remains same. So that's why हमने ये मीडियन ग्रेटर देन 2 को क्या लिया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और मीडियन इक्वल टू 2 को हमने लिया है नल हाइपोथेसिस. अब इसको टेस्ट करना है हमें साइन टेस्ट से, बाय अप्लाइंग साइन टेस्ट. और ये वन सैम्पल टेस्ट है, ये एक ही सैम्पल लिया हुआ है, राइट, ओनली वन सैम्पल हैज़ बीन कलेक्टेड, सो दैट्स वाई वन सैम्पल साइन टेस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. हाउ इट कैन बी डन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर मीडियन ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो आपको इनमें से कितने ऑब्जर्वेशंस 2 से बड़े हैं वो ढूंढना पड़ेगा आपको. So how many observations are greater than 2? That you will have to find out from these observations, 10 observations. Greater than 2. So 1, 2, 3. This is smaller. This cannot be right taken. So 1, 2, 3. This is also greater than 2. 4, 5, 6, 7. Greater than 2. 8 and 9. 9 observations are greater than 2. So I will write here. Total 9 observations out of 10 observations are greater than 2. So in this type of sum we are going to apply a binomial distribution method. If the value of n is smaller than 25, then we will apply binomial distribution, and if this value of n is greater than 25, then we will apply normal distribution. So since it is smaller than 25, we are going to apply binomial distribution in this sum. हम binomial distribution apply करने वाले हैं क्योंकि n जो है वो 25 से कम है. 25 से बड़ा होता अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते. तो ये सब में बाइनोमियल अप्लाई होने वाला है. सो बाइनोमियल अप्लाई करेंगे और हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. इसमें p और q को हम हाफ हाफ ले लेंगे. सो द वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल टू 1/2, एंड सिंस p इज इक्वल टू 1/2, q इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. ऑलवेज ये साइन टेस्ट में हम p और q को हाफ हाफ ही ले लेंगे. सो p और q मिल गया हमको 1/2. अब हमें टेस्ट करना है दैट प्रोबेबिलिटी t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर वो नंबर ढूंढे, ये मीडियन हमें बोला है ग्रेटर देन 2, तो हमने यहाँ पर वो नंबर ढूंढे जो ग्रेटर देन 2 है, और हमें ऐसे 9 नंबर्स मिल गए. टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस ऐसे मिल गए जो ग्रेटर देन 2 थे. इसके लिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं p t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और इसमें हम कौन सी मेथड अप्लाई करने वाले हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन 9 अगर बोला है, अब हमारा n तो 10 है ना, n तो 10 है. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 लेना है तो हम एक तो 9 लेंगे और एक 10 लेंगे. 9 लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू है, और ग्रेटर है इसके लिए 9 से बड़ा भी लेना पड़ेगा, तो 9 से बड़ा 10 होता है, 10 से आगे हम जा नहीं सकते. तो हम लोग दो वैल्यूज़ लेने वाले हैं, 9 एंड 10. So basically I will write here P9 plus P10, P9 plus P10. So binomial की फॉर्मूला आपको पता होगा, NCX into P raised to X into Q raised to N minus X. So 10C, and what is the value of your X in this case? 9 into P raised to X. P means half. Here we have written P and Q, both the value are half half. So 1/2 raised to 9. And q is also 1/2, that raised to, so ncx into p raised to x into q raised to n minus x. N is 10 minus x is 9, 10 minus 9 is 1. तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख लिया है p9 की जगह, p9 की जगह. अब हम प्लस करेंगे, ये p9 का आंसर हो गया, और अब हम प्लस करके p10 लिखेंगे. सेम ncx. So n is 10, the value of n is 10. See, the value of x is also 10, because अब ये p10 सॉल्व करें तो x की वैल्यू भी 10 है.
into p means half again raised to x, and this time x is 10 into q means half raised to 0, बिकॉज यहाँ पे हम n माइनस एक्स लिखते हैं तो n 10 है और x भी 10 है, तो 10 माइनस 10 0 हो जाता है. अच्छा, 10c9 का आंसर 10 है. 1/2 रेज टू 9 है और ये 1/2 रेज टू 1 है, तो हम लिखते हैं 1/2 9. देखो बीच अगर ये दो नंबर सेम और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर विल बी एडेड, तो 9 + 1 10 हो जाएगा. ये सॉल्व हो गया. अब वो साइड वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 10c10 1 होता है और ये 1/2 सेम, तो मैं भी एक बार लिख देता हूँ 1/2, और जब सेम हो बेस और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर विल बी एडेड. 10 + 0 इज 10, सो 10 की जगह 10 हो जाएगा. एक काम कर सकते हैं, इस ब्रैकेट में भी 1/2 रेज टू 10 है और इस ब्रैकेट में भी 1/2 रेज टू 10 है, तो हम 1/2 रेज टू 10 को कॉमन निकाल लेते हैं. अब ये 1/2 रेज टू 10 तो बाहर कॉमन में निकल गया, क्या बच गया 10 प्लस 1/2 रेज टू 10 तो बाहर कॉमन में निकल गया, फिर ब्रैकेट में क्या बच गया है सिर्फ 1. सो 1/2 रेज टू 10 और 10 + 1 हो जाता है 11. सो 1 to the power 10 आप करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, और 2 to the power 10 आप करोगे अगर तो आंसर आएगा 512. सॉरी 1024. 2 to the power 10 करोगे तो आंसर आएगा 1024 into 11. Now 11 ones are 11 and 11 divided by 1024. So 11 divided by 1024. You will get 0.0107. 0.0107. This you will get. The answer of P, T is greater than equal to 9. Now this answer should be compared with the significance level. And if in question significance level is not given, then we will assume that the significance level alpha is 0.05. अगर नहीं दिया है तो हम अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल को सपोज कर लेंगे 0.05. अब हमने जो आंसर लाए हैं, द वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड PT is greater than equal to 9 is 0.01. This answer 0.01 is smaller than P. T is greater than equal to 9. Its answer 0.01 is smaller than the answer of alpha. If calculated is smaller than the significance level alpha, then null hypothesis is rejected. Null hypothesis reject हो जाएगा. Null hypothesis H such that median is equal to 2 है. Median equal to 2. ये रहा हमारा null hypothesis. Null hypothesis H0 such that median is equal to 2. Median is equal to 2 is rejected. Is rejected. It cannot be accepted. I hope you understood this sum, students. So students, now we are going to solve example number 2 from the question that I had given in the beginning of the video. So in example number 2, equivalent pairs of 12 students were formed. Equivalent pairs of 12 students were formed. In these pairs, there are two groups, A and B. So I am keeping this question in front of you here, if you are able to see it. So here equivalent pairs of 12 students were formed. In this pair, in these pairs there are two groups A and B. Group A is trained with one method and group B is trained with another method. दोनों को अलग अलग मेथड से ट्रेनिंग मिली है. The decision taken by the examiner for each group about the educational performance has been given below. तो नीचे एग्जामिनर का डिसीजन है. Selection of educational performance by two methods. So these are the 12 pairs and these are the AB groups. These are the groups that are selected. Now below this table, decide from these data
which group has better performance. Now from the given data, from the given table, we will have to decide that which group has better performance, group A or group B. So here you can see that A is denoted by negative sign and B is denoted by positive sign everywhere. So that's why this method, this test is known as sign test, because we allot a sign. So here in this sum in question, they have allotted negative sign to A and positive signs to B. So how many negative signs are there? So 1, 2 and 3 negative signs are there. They have written here also x is equal to 3. It means 3 negative signs out of 12. 9 positive signs are there. So moving forward to the solution, so I am first of all going to write a null hypothesis. What they have asked in the question, to decide whose performance is better, performance of group A is better or group B better. But null hypothesis always says that there is no difference in the performances of group A and group B. So in null hypothesis we are not going to show anyone better. We are going to show both the performances are equal. So null hypothesis is such that performances of group A and B are equivalent. They are no different. And in alternative hypothesis H1, you can show anyone better. Anyone better. Either you can show group A better or you can show group B better. So since you can see in the table that A is there only for 3 times in the table, so टेबल देखकर तो ये लग रहा है कि A का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है एज कम्पेयर टू B, तो हम यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यही ले लेते हैं कि A का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है B से. सो प्रोबेबिलिटी द परफॉर्मेंस ऑफ A इज लेस गुड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ B. तो N12 है और ग्रुप A जो है नेगेटिव साइन वो 3 टाइम्स है. सो x इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस. इसको थोड़ा वापस से रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन में हमें टेबल दिया है, एग्जामिनर्स ने एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन किया है, 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स में से 3 पेयर ग्रुप ए की सिलेक्ट हुई है और 9 पेयर्स ग्रुप बी की सिलेक्ट हुई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और हमें इस डेटा से ये डिसाइड करना है कि ग्रुप ए का परफॉर्मेंस अच्छा है कि ग्रुप बी का परफॉर्मेंस अच्छा है. तो नल हाइपोथेसिस में तो हम हमेशा इक्वल रखते हैं. देयर इज़ नो डिफरेंस इन द परफॉर्मेंसेज ऑफ ए एंड बी, बोथ द परफॉर्मेंसेज आर इक्वल. दिस इज़ व्हाट इज़ योर नल हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमें किसी को बेटर बताना पड़ेगा और किसी को ख़राब बताना पड़ेगा थोड़ा. तो डेटा के हिसाब से ही जाएंगे. डेटा में 12 पेयर जो सिलेक्ट हुई है उसमें कम पेयर्स कौन से ग्रुप की है, तो आप देखोगे कि पेयर ए जो है वो सिर्फ 3 टाइम्स सिलेक्ट हुआ है और पेयर बी जो है वो 9 टाइम्स सिलेक्ट हुआ है. मतलब ए जो है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब है. तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम ऐसे ही लिखते हैं कि ए का परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब है, लेस है, किससे, बी से. ओके, सो आपको नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा. अब टोटल कितनी पेयर्स है, 12 पेयर्स है, जिसमें से जो ग्रुप ए है उसका सिलेक्शन, उसमें से ग्रुप ए में से कितनी पेयर्स का सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ 3 पेयर्स का सिलेक्शन हुआ है. सो देयर आर 3 नेगेटिव साइंस इन द गिवन टेबल इन द क्वेश्चन. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अगेन द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 12, is less than 25. so again we are going to apply that binomial distribution method only. binomial ही apply करने वाले हम वापस से इसमें.
तो अब हम इसमें लेंगे P, अब क्योंकि हमने यहाँ पे x लिया है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3 लेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन कम थी, इसके लिए हमने स्मॉलर देन इक्वल टू 3 लिया। सो ऐसे तो 3 मेथड्स है, आप इक्वल टू की साइन इसके लिए 3 लोगे और स्मॉल इसके लिए 3 से छोटा भी लोगे, तो यू विल टेक 3, you will take smaller than 3 means P2 also will be taken, P1 also will be taken and P0 also will be taken. Then you can apply that long formula NCX into P raised to X into Q raised to X into, and since I have already told you that in this chapter value of P and Q will be equal to, value of P will also be equal to 1 upon 2 and Q will also be equal to 1 upon 2. You can apply this formula if you want. तो अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना हो तो एक दूसरा तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो एग्ज़ाम में या फिर लॉग बुक या टेबल मिले, टैबुलर बुक, उसमें आपको एक पेज ढूंढना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ वाला पेज ढूंढना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़, ये पेज का भी फ़ोटो में एट द एंड ऑफ द वीडियो डाल दूंगा। सो ये वाला आपको पेज ढूंढना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर n कितना है हमारा ये सम में, तो ये सम में हमारा n 12 है, तो ये सम में हमारा n 12 है, तो 12 के सामने जाके, और x हमारा कितना है 3 है, 3 देख लो, तो n 12 के सामने जाकर 3 देख लो, ये 0 है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हमारा आंसर है 0.0730। ये कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 0.0730। और एग्ज़ाम में राइट मिलेगा, रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है इसको, अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखते हो विद द हेल्प ऑफ द टेबल। वो टेबल सिर्फ स्मॉलर देन और इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम आता है। नाउ सिंस द सिग्निफिकेंस लेवल इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कि वो 5% है कि वो 1% है, तो हम उसको हमेशा अज्यूम करेंगे वो 5% है, 5 मीन 0.05, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है। अब हमारा जो आंसर है वो 0.05 से बड़ा आ गया है, 0.07, तो अवर कैलकुलेटेड वैल्यू x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 कम्स टू बी ग्रेटर देन अल्फ़ा, अल्फ़ा से बड़ा हो गया। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है ना, नल हाइपोथेसिस के परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप A and B आर इक्विवेलेंट, ये नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। So students, we are going to do this sum number 3. Here in the question it is written that to get the information about the effect of film on the behavior, फिल्म का क्या इफेक्ट होता है लोगों के बिहेवियर पे, स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे, ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया एक पर्टिकुलर स्कूल से। उन 100 स्टूडेंट्स को दे वर इंस्पेक्टेड फॉर दिस पर्पस बिफोर एंड आफ्टर व्यूइंग द फिल्म। उनका बिहेवियर फिल्म दिखाने से पहले और फिल्म दिखाने के बाद ऑब्जर्व किया गया। तो उसका टेबुलर फॉर्म दिया है, इफेक्ट ऑफ द फिल्म ऑन बिहेवियर। आफ्टर द फिल्म मोर इफेक्ट और लेस इफेक्ट, बिफोर द फिल्म मोर इफेक्ट और लेस इफेक्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर। What we are required to do, test the hypothesis, null hypothesis. There is no effect, obviously null hypothesis में हमेशा nullification ही होता है। There is no effect of film against an alternative hypothesis. तो फिल्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हमारा null hypothesis यही रहेगा, और alternative hypothesis ये रहेगा कि फिल्म का इफेक्ट हुआ है। There is systematic effect of film, और यहाँ पे हमें significance level भी दे दिया है 0.01, क्लियरली मेंशन किया है 0.01। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, और एक चीज़ आप ध्यान रखो ये सम के अंदर क्वेश्चन में कि 100 स्टूडेंट्स है, मीन्स n की वैल्यू 25 से ग्रेटर है। n की वैल्यू जब 25 से ग्रेटर हो तो फिर हम बाइनोमियल अप्लाई नहीं कर सकते, इस सम में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे मैं आपको सम में दिखा दूंगा।
तो इसकी फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लगाया है उस क्वेश्चन में से एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। और हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे इसके अंदर। वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। सो वैल्यू ऑफ n इज 100 विच इज ग्रेटर देन 25। Therefore, normal distribution will be applied. And the formula for normal distribution is z is equal to x minus 0.5 minus n upon 2 whole upon रूट n अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स ये x क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा x की वैल्यू क्या है। तो वी आर टेस्टिंग एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। We are testing an alternative hypothesis H1 wherein we have to test that there is a systematic effect of film। इफेक्ट है, फिल्म का इफेक्ट है फिल्म देखने के बाद, बराबर। और फिल्म देखने से पहले इफेक्ट नहीं है, फिल्म देखने से पहले इफेक्ट नहीं है और फिल्म देखने के बाद इफेक्ट है, ये muझे टेस्ट करना है। तो बिफोर फिल्म इफेक्ट नहीं है, लेस इफेक्ट। बिफोर फिल्म लेस इफेक्ट, आफ्टर फिल्म मोर इफेक्ट। तो ये आपके x की वैल्यू है, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देयर इज इफेक्ट। इफेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, इफेक्ट है का मतलब ये होता है कि बिफोर फिल्म तो कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन आफ्टर फिल्म है इफेक्ट। सो बिफोर फिल्म लेस इफेक्ट मीन्स दिस साइड, एंड आफ्टर फिल्म देयर शुड बी एन इफेक्ट, सो दिस साइड। सो बोथ आर मैचिंग हियर एट 70। दिस 70 इज द वैल्यू ऑफ योर x। So value of your x is 70. I am writing it down here. Now one more thing you need to keep in your mind, that if the value of your x is less than n upon 2, what is the value of your n? Your n is 100. So यहाँ पर मैं n upon 2 करके रखता हूँ। n upon 2 means 100 upon 2 और 100 upon 2 50 होता है। तो आपका n upon 2 का आंसर 50 है और आपका x का आंसर 70 है। अब आपको x को और n अपॉन 2 को कंपेयर करना है, और अगर x का आंसर n अपॉन 2 से बड़ा आ जाए, x का आंसर n अपॉन 2 से बड़ा आ जाए, जैसे कि अभी आया है, इफ़ x इज ग्रेटर देन n अपॉन 2, जो अभी हुआ है x ग्रेटर है किससे, n अपॉन 2 से। अगर ऐसा होता है, इफ x इज ग्रेटर देन n अपॉन 2, अगर ऐसा होता है तो आपको इस फॉर्मूला में यहाँ बीच में माइनस की साइन लगानी है, x माइनस 0.5। लेकिन अगर x का आंसर n अपॉन 2 से स्मॉलर आता है तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस की साइन लगानी है आपको, बस ये याद रखना। इफ़ x इज ग्रेटर हो तो उल्टा, यहाँ माइनस की साइन, और x अगर स्मॉलर हो तो यहाँ प्लस की साइन, ये याद रखना। वैल्यू रख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ x इज 70 माइनस 0.5, n upon 2, ready answer, n upon 2 50, here it is root of n means root of 100 upon 2, so 70 minus 0.5 69.5 minus 50, root of 100 का रूट 10 होता है और 10 डिवाइड बाई 2 5 होता है। so upon solving this on calculator, 69.5 minus 50 is 19.5, 19.5 divided by 5, you will get 3.9 as an answer. So this value that you have calculated, the answer comes to 3.9. Now क्योंकि हमने कौन सी मेथड अप्लाई की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे ना, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व चेक करने के लिए।
So we will see a normal distribution table. From area under normal curve, we will see we have to show 3.9, so we are showing it here 3.9. सो इफेक्ट है आफ्टर 3.9, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है इसकी. तो हाउ कैन वी फाइंड इट? सो वी कैन फाइंड इट बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस एंटायर रीजन, एंड दिस एंटायर रीजन इज 5000. आई एम डूइंग इट डायरेक्टली. दिस एंटायर रीजन इज 5000, 0.5000 minus, and this value we will have to find out from the area under normal curve table 3.9. So if you will see its value from area under normal curve, you will get the answer 0.49995. 3.9 value will be 0.49995, and upon solving this on calculator, 0.5000 minus 0.49995, you will get 0.4 times 0 and then 5. This answer that you are going to get. Your significance level alpha is 1% in the question. It was given. So alpha is 0.01. तो आपका जो आंसर आया है वो 0.00005 है, जो छोटा है. छोटा है किससे? अल्फा से. So your answer P Z is equal to 3.9. This answer is smaller than alpha. This answer is smaller than alpha. Therefore null hypothesis H0 is rejected. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.